I'll reframe your question. Okay. Your question is not about ki, what mechanism exactly leads Mahat to give rise to Ahankar. You are asking what force differentiates that Mahat will only give rise to Ahankar. Correct? We know Mahat. I mean, now that you said, it is. I accept that Mahat gives Ahankar is a baby of Mahat. But how to why is Sachin Tendulkar and me? There's a difference, right? Right. So are there is there an explanation which says it is because of a certain amount of environment that causes these things, or we don't know about it? Okay. So there are two answers to this. Not two different answers, two aspects to the same answer. I'll give you. Now, Mahat has a potential to only give rise to Ahankar. Mahat will not give rise to anything else because there are, according to Sankhya, there are only 25 principles. There cannot be some XYZ principle suddenly emerging out of nothing. And then we say that we have a 26th principle also. Okay, so the sequence is specific and the sequence is well defined. Number one. Number two. Now, what exactly happens that Mahat give rise to Ahankar is that it is a exact disequilibrium of the three gunas. That is the primordial reason of Prakriti getting divided into different principles itself. Okay, so the beginning itself, when we speak about Prakriti, so what happens is when there was nothing, okay, we studied this in the Isha Upanishad also. So when there was nothing, so nothing exactly existed, which means that in this nothing, the three gunas, which is Sattva, Raja, and Tama, were exactly function wise, not quantity wise. Okay, function wise, they were exactly at an equilibrium. So there came a time where, now what is the cause for this? We'll see later. But there was a time when, so the universe had to come into picture, had to come into creation. So there was a disequilibrium of these three gunas. How did it happen? Who is the source of which guna is the source of that? Everything we will see in gunas. And there Rajas. is yeah, exactly, Rajas, yes. So we will see that. But once this disequilibrium happened, so ultimately because of this imbalance, one principle started giving rise to another. So there was a sequence that started following. This is what not just Sankhya, but several other, even Nyaya Vaisheshik speaks about. So this is what they say. Is this okay? Okay, for the time being, I'll mull it over. Yeah, sure. Okay. Thank you. Thank you. So good. I think let's continue with our regular Sunday session. So this was a recap and we had few question answers. हमने कुछ सवाल लिए यहाँ पे, तो ये भी किया है हम लोगों ने. जैसे हम आगे जाते हैं तो आज का सेशन जो है हम वापस एक बार आंखें बंद करेंगे और हम गुरु स्मरण करेंगे और गायत्री स्मरण करेंगे और सरस्वती स्मरण करेंगे, वंदना करेंगे. उसके बाद में हम आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं. आंखें बंद करेंगे. ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गायत्री मंत्र. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. सरस्वती जी, शारदा जी का स्मरण करेंगे और आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे. तो आज का सेशन अगर हम चाहिए तो हम मिक्स इसको वी कैन हैव इट इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. आई विल कंटिन्यू मच ऑफ द पार्ट
क्योंकि हमने उपनिषदों की और बाकी सारे विषयों की शुरुआत हिंदी में की थी, तो काफ़ी सारे सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं हिंदी में ही इसे आगे कंटिन्यू करूँगा। तो हम लोगों ने देखा था कि प्रमाण किस तरीके के होते हैं। तो इसके आगे ऋषि हमें ये बताते हैं, या भाष्यकार जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अध्यात्म में कही गई है, सिर्फ सांख्य में ही नहीं। अब वो सारी चीज़ों के बारे में कह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेदों में, उपनिषदों में कही गई है, लेकिन उसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण हो, तो उसको समझ लेना बहुत आसान हो जाता है। हमारा मन को संतोष मिल जाता है, और फिर हमें किसी भी तरीके की शंका नहीं रहती। लेकिन शंका कब उत्पन्न होती है? जब हमें अनुमान लगाने की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे शंका पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब अनुमान लग जाए तो शंका जो है वो वापस नष्ट हो जाती है। लेकिन उसके भी परे अगर कोई चीज़ है, तो शंका हम कैसे नष्ट कर लें? तो वहाँ पे कहीं हम इसीलिए अध्यात्म में जो यहाँ पर ही है, क्रिश्चियनिटी में हम उसको फेथ कहते हैं, हमारे यहाँ पे हम उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का भाग यहाँ पे आया हुआ है। तो भाष्यकार ये कहते हैं, गौड़पदाचार्य भी और ईश्वर कृष्ण दोनों ने ये कहा है कि सांख्य मुनि जो गुरु कपिल मुनि जो है वो कह रहे हैं कि हमें जो चीजें प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दिखाई नहीं दे रही हैं, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, इसका कारण यहाँ पे कुछ कारण बताए गए हैं। पहला कारण ये बताया गया है कि अगर कोई चीज बहुत दूर हो तो वो हमें दिखाई नहीं देती। दूसरा कारण बताया गया है कि अगर कोई भी चीज बहुत ही निकट हो तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। तीसरा, अगर हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो इंफॉर्मेशन आने के जो गेट्स है, हमारे जो द्वार है, अगर वहां पे किसी भी ज्ञानेंद्रिय को किसी भी तरीके की तकलीफ अगर हो, तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वो वहां पे बताया गया है। एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताई गई है, इन अटेंशन जो यहाँ पे लिखा है। अगर उदाहरण के तौर पर मेरे सामने 100 चीजें रखी हुई हैं, लेकिन अगर मेरे मन में उसमें से किसी एक ही चीज का विचार अगर हो रहा है, तो बाकी जो 10 में से 9 चीजें हैं उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि वो वहां पर थी ही नहीं, और मैं समझ लेता हूँ कि वो प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने नहीं थी। तो इसीलिए हम उससे, अगर हम किसी चीज के तरफ ध्यान ना दें, तो वो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं आती। फिर बताया गया है कि अगर कोई चीज सूक्ष्म रूप में हो तो भी वो हमें दिखाई नहीं देती। अगर मेरे सामने कोई खड़ा है तो वो मैं प्रत्यक्ष रूप से उसे देख सकता हूँ, लेकिन अगर बीच में कोई दीवार आ जाए, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, अगर कोई दीवार आ जाए तो मैं उसे नहीं देख सकता। और अगर कोई चीज है जिसे सप्रेस किया गया हो, तो भी हम उसको प्रत्यक्ष रूप से जान नहीं सकते। इसी कारणवश जो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो प्राप्त नहीं होते। तो शिष्य गुरु को पूछते हैं ये समय पर कि अध्यात्म के जो तत्व बताए गए हैं, जो आप 25 तत्व जो बता रहे हो, और उसमें से जो सूक्ष्म तत्व, ये समझना बहुत जरूरी है। जो 25 तत्व है उसमें से कुछ तत्व जो है वो स्थूल है, जो पंच महाभूत है वो स्थूल है। फिर पंच महाभूत छोड़ के जो बाकी सारे तत्व हैं, मतलब अगर 25 में से 5 निकाल देंगे और अगर हम 20 के बारे में बात करते हैं, तो वो सारे तत्व जो है वो सूक्ष्म तत्व है, और सूक्ष्म तत्व के भी कारक होते हैं। और हर एक स्थूल तत्व हो या सूक्ष्म तत्व हो, हर एक कारक का अपना एक कारक होता है जो एकत्रित आके लिंग बनाता है। इसके बारे में भी, इसको एस्ट्रल बॉडी, इंग्लिश में इसको एस्ट्रल बॉडी कहा गया है, या लिंग, हमारे यहाँ पे इसको लिंग कहते हैं। ये लिंग जो है वो, जिसे शिवलिंग जो कहा जाता है, उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि शिवलिंग इस रूप में सांख्य में कहा नहीं गया है इसे। तो वो क्या है हम उसको भी देख लेंगे। लेकिन शिष्य पूछता है कि इसमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम इन तत्वों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते। तो गुरु कहते हैं कि एक कारण है, ये कारण ये है कि तुम शरीर को देख सकते हो। तो शरीर क्या है? पंचतत्व है। इसका मतलब पंचतत्व को तुम जिस जिस रूप में पंचतत्वों ने जो आकार लिया है उसको तुम देख पा रहे हो, क्योंकि वो या तो बहुत दूर नहीं है
तो इसीलिए देख पा रहे हो, या तो बहुत निकट नहीं है इसीलिए देख पा रहे हो, या तो तुम्हारी आंखें ठीक है इसीलिए देख पा रहे हो, आपका ध्यान है इसीलिए देख पा रहे हो, बहुत सूक्ष्म नहीं है इसीलिए देख पा रहे हो, और बाकी कोई भी कारण हो वो नहीं है इसीलिए तुम उसे देख पा रहे हो। लेकिन जो सूक्ष्म है, जो बाकी के तत्व है, वो बहुत ही छोटे रूप में या बहुत ही सूक्ष्म रूप में होने की वजह से हम उसे देख नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही निकट है, इसमें से और कोई भी कारण नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म होने के कारण हम उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। तो अभी 2 कौन से प्रमाण बच जाते हैं उसको समझने के लिए? तो पहला प्रमाण है, वो है अनुमान, अनुमान लगाना। अब अनुमान हम किसके बेसिस पर लगाते हैं? तो अनुमान हम चिन्ह के आधार पर हम लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये बहुत ही आसान उदाहरण देके रखे हैं। अगर हम सांख्य को अभ्यास करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है कि अगर हमें कहीं दूर धुआं दिखाई दे रहा है तो हमें अनुमान लगा लेना चाहिए कि अग्नि कहीं ना कहीं पर है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं नहीं आ सकता। तो अगर धुआं है तो धुआं क्या है? धुआं साइन है किसका? तो आप अनुमान लगा लीजिए कि अग्नि वहां पर है। तो ये एक प्रमाण यहाँ पर बताया गया है। और तीसरा प्रमाण जो है वो हमें यहाँ पे समझना होगा कि अगर ऋषि बता रहे हैं, वो अगर हम अनुमान रूप में भी नहीं समझ सकते, जैसे अहंकार को हम बुद्धि से समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो अहंकार की उत्पत्ति बुद्धि से हुई है। मन को हम समझ सकते हैं, गुणों को हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति हुई है, वो व्यक्त रूप में है, उनका हम अनुमान लगा सकते हैं। मन को हम देख नहीं सकते, लेकिन विचार और भावनाएं कहाँ पर है? क्या हमें ये प्रश्न पड़ता है कि मन है कि नहीं है? शायद नहीं भी हो मन, ऐसे भी हो सकता है। हमें पता है, हमें अनुभव है ना कि मन है। क्या हमने मन को देखा है? क्या आपने अपने मन को देखा है? नहीं देखा है। क्या आपने किसी और के मन को देखा है? नहीं देखा है, लेकिन आपने मन तत्व है इसका अनुमान लगाया है, क्योंकि विचार कहाँ पर है? तो वो मन में है। और दूसरी बात, भावना कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो वो मन में उत्पन्न होती है, तो इसका हम अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन अव्यक्त प्रकृति और पुरुष का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, और इसका अनुमान नहीं लगा सकते तो इसका प्रमाण, इसके अस्तित्व का प्रमाण क्या है? तो भाष्यकार ऋषि कहते हैं कि हमें ये मान लेना चाहिए, क्योंकि ऋषि कह रहे हैं ये शब्द प्रमाण है, और जो वहां तक पहुंच चुके हैं उनके अनुभव है, इसीलिए हमें ये चीज मान लेनी चाहिए। ये मैं वापस एक बार कुछ चीज, तो मूल विज्ञान है, आगे जो सारी चीजें आएंगी हम गुणों के बारे में भी बात करेंगे, जो सीक्वेंस आए हैं वो कैसे डिवीजन हुए हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मूल हमने वहां पे क्या देखा, उसको एक बहुत ऊपर सुपरफिशियली देखा कि उसका मूल कारण क्या है, कि कारण और कार्य, ये जो सारी चीजें प्रकृति में हो रही हैं, जो सारी चीजें, मतलब हम डिटेल में मटेरियल फॉर्म में जितना डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे तो भी हमें यही मूल तत्व दिखाई देंगे। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिकों ने आज एक छोटी सी पेशी को भी स्टडी कर लिया है, उसका अभ्यास कर लिया है, उसके अंदर किस तरीके की चीजें होती हैं, मूवमेंट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो सारे स्टडी कर लिए हैं। लेकिन उसके भी मूल कारण क्या है, मतलब विषयों का भी विषय क्या है, कारण का भी कारण क्या है, वहां तक वो सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है आज भी वो मटेरियल फॉर्म में अटकी पड़ी है। मैं साइकोलॉजी के बाहर जा ही नहीं सकता। क्या हो रहा है, अगर मैं बहुत सारे हद तक अगर मैं अध्यात्म की भी बात करूं तो इमोशंस, विचार, भावना और जो सारी चीजें मुझे दिख रही हैं उसके परे मैं जा ही नहीं पा रहा हूं, मेरे अनुभव जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप उसको एविडेंस से प्रूव, अगर मेरी बुद्धि उसको नहीं देख सकती, अगर मेरी बुद्धि उसको समझ नहीं सकती तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, हम ऐसे मान लेते हैं। और इसी कारणवश जो वैज्ञानिक हैं आज के, वो कहाँ पर अटके हैं कि जिसका हम अनुमान ही लगा सकते हैं उसी को हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारे विज्ञान में, हमारे यहाँ पे जो विद्याएं बताई गई हैं वो क्या कहते हैं कि पहले शुरुआत ये करो कि अगर ऋषि ने बताया है, ये मैं कह रहा हूँ इसीलिए नहीं, ये आप जाके पढ़ सकते हैं,
जो ऋषि ने बताया है उसको पहले प्रमाण मान लीजिए आप, उसको प्रमाण मान लीजिए। एक बार प्रमाण क्यों मानना है? क्योंकि जिंदगी भर उसको प्रमाण मानते ही नहीं रहना है। उन्होंने आपको कुछ करने के लिए कहा है। उदाहरण के तौर पर प्रमाण मान लेने के बाद में ऋषि हमेशा कहते हैं कि साधना करनी है, तपश्चर्या करनी है आपको। तो जब आप साधना कर रहे हैं, जब आप तपश्चर्या कर रहे हैं, तो उसके बाद में ऋषि कह रहे हैं, जो गुरु हैं, वो आज के गुरु जो है वो ऋषि ही हैं। तो गुरु क्या कह रहे हैं हमें? तो गुरु ये बता रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो पहले कीजिए, शंका मत कीजिए। फिर उसके बाद में जैसे-जैसे गुरु शिष्य परंपरा में जैसे-जैसे आपको वो अनुभव आते जाएगा, वैसे-वैसे आपको पता चलेगा कि मेरे गुरु जो-जो सारे चीज़ें बताया करते थे मुझे, वो प्रमाण रूप में मुझे आज अनुभव रूप में उसका प्रमाण मिलते जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे अनुभव को पहला प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण। और फिर जब शब्द प्रमाण को हम मान लेते हैं, तो उसके बाद में जो क्या प्रमाण आता है वो अनुभव प्रमाण आता है। जब मुझे किसी चीज़ का अनुभव हो जाता है, तो मैं उसका अनुमान लेने में सहज हो जाता हूँ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है ये बताने के लिए कि मेरा मन है। मुझे अनुभव है कि मेरे भावनाएँ हैं, भावना है तो मन है, ये मुझे पता है। क्या मुझे इसको वैलिडेट करना पड़ेगा? क्या मुझे इसको वैज्ञानिक तौर पर प्रूव करना पड़ेगा? जब तक मुझे कोई रिसर्च पेपर नहीं आ जाता इस पे, तब तक मैं मन नहीं है ऐसे मान लूँगा। या जो चीज़ मुझे अंदर दिखाई नहीं दे रही है, मेरे विचार मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेरे विचार को मैं स्पर्श नहीं कर सकता। मेरे विचारों को मैं अपने कानों से, जैसे हम बाहर की आवाज़ सुनते हैं, वैसे नहीं सुन सकता। लेकिन एक छोटी-सी बात यहाँ बता रहा हूँ, मैं विचार सुन सकता हूँ। तो मैं विचार कैसे सुन लेता हूँ? शब्दों के बिना मैं विचार सुन लेता हूँ। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो विचार है वो शब्द रूप में है। शब्द क्या है? वो तन्मात्र है। तन्मात्र कैसे होते हैं? वो सूक्ष्म रूप में होते हैं। तो इसे भी हम समझ लेंगे। वो सूक्ष्म जो है उसका मैंने अनुमान लगा लिया है। अगर कोई यहाँ पे जाप करता है, तो जैसे-जैसे वो जप करते जाता है, वैसे-वैसे धीरे-धीरे हम पहले जप बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है? हम उसके बाद में उसको, हमारा मुँह तो चल रहा है, लेकिन वो हम थोड़ा-थोड़ा वो मन की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। और धीरे-धीरे वो इस आपकी साधना में इस फ़ेज़ में आ जाता है, जहाँ पे आपको प्रत्यक्ष उसे बोलने की, सोचने की या मन में बोलने की आवश्यकता नहीं होती, वो जप शुरू रह जाता है। इसका अर्थ क्या है? आप सूक्ष्म रूप में जप का जो साधना के माध्यम से आपके जो सूक्ष्म तन्मात्र है, मतलब सूक्ष्म शब्द है, जो वहाँ पर आप जाकर पहुँच गए हो। ये इसका अर्थ है, इसीलिए साधना बताई गई है। तो कपिल ऋषि ये कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, वो इसका मूल आधार क्या है? जो हम प्रमाण से समझते हैं, उसका मूल आधार क्या है? तो है कॉज़ और इफ़ेक्ट, कारण और कार्य, जिसको हमने देखा। लेकिन हम उसके अलग-अलग क्वालिटीज़ क्या हैं, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने ये देख लिया कि जो सारी चीज़ें इस दुनिया में प्रकृति में हो रही हैं, हुई हैं या होने वाली हैं, तो वो इसी एक विज्ञान की वजह से है, इसी एक मूल आधार पे आधारित है, वो है कारण और कार्य। दूसरी बात, कारण और कार्य ये विज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया। ये इसको पुरुष ने नहीं दिया है, ये प्रकृति में मूल कारण छुपा पड़ा है। जब प्रकृति का विभाजन होना शुरू हो जाता है, तब ये जो साइंस है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। जैसे अगर मेरी कोई क्वालिटी है, मेरा अगर कोई गुण है, लेकिन उस गुण को एक्सप्रेस करने के लिए अगर मेरे इर्द-गिर्द कोई कंडीशंस ही ना हो, तो मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। तो जब ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं, तब ये जो साइंस है, ये जो लॉ है, ये एक फिज़िक्स का ही लॉ है, इसको समझ लीजिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी हमें दिखाई तो नहीं पड़ती, लेकिन वो एक्सप्रेस कर लेती है। जहाँ पे 2 स्थूल वस्तु हैं, वो एक-दूसरे की तरफ आ ही जाती है, जो हमें गीता में भी बताया गया है। तो ये लॉ है, जो सूक्ष्म रूप में होता है, जो मूल कारक रूप में होता है, तो इसी तरीके से वो प्रकृति में छुपा पड़ा है। अब ये भी बताया गया है कि एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि जो मूल कार्य है, वो कहीं से कहीं तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसका जो पोटेंशियल है, जो
कारण है, उसमें एक पोटेंशियल है कि वो एक ही तरीके का मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कारक कार्य को ही जन्म देगा, किसी और चीज को जन्म नहीं देगा। ये जो गुण है, ये जो मूल लॉ है, वो भी इसमें, ये जो कार्य और कारक का लॉ है, इसमें ही इनहेरेंट है। अब बात यह है कि उदाहरण देता हूं मैं, जैसे हम ये क्वेश्चन आंसर में भी ये डिस्कशन हो चुका है, लेकिन ये वापस एक बार हम इसको देखेंगे कि जो सारे गुण, गुण मतलब मैं सत्व रजत तमो इस गुणों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज हैं उस गुणों की बात कर रहा हूं। जो सारे गुण अहंकार में है, वो सारे गुण महत में भी होंगे, या तो जो सारे गुण मन में है, मनस में है, वो सारे गुण अहंकार में होंगे ही। लेकिन जो सारे गुण अहंकार में है, वो मनस में नहीं होंगे। रिवर्स, जो सारे गुण अहंकार में है, वो सारे गुण बुद्धि में होंगे, महत में होंगे, लेकिन महत के सारे गुण जो है वो अहंकार में नहीं होंगे, क्योंकि वो अहंकार से जन्मा है और वो स्पेसिफिक उसमें से कुछ गुणों को लेकर ही जन्मा है, और बाकी सारे गुण हैं वो सिर्फ महत में ही रहेंगे। इफेक्ट इज द नेचर ऑफ द कॉज। तो इसका अर्थ ये है कि प्रकृति का मूल गुण जो है वो कार्य को उत्पन्न करना, ये इसका मूल गुण ही है। इसको समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सांख्य में ये कहा गया है, वेदांत में ये नहीं कहते, ठीक है। वेदांत को हम आखिरी लास्ट में देखेंगे, उपनिषद का कोर्स खत्म होने के बाद देखेंगे। लेकिन सांख्य में ये कहा गया है कि प्रकृति ये जीवित नहीं है, प्रकृति जीवित पुरुष के वजह से है। तो जीवित क्या है, तो वो पुरुष है। जब पुरुष प्रकृति के संबंध में आ जाता है, तो ऐसे दिखाई पड़ता है कि प्रकृति जीवित है। इसका एक बहुत ही सामान्य उदाहरण ये दिया गया है कि दूध ये जीवित नहीं है, ये कोई लिविंग फॉर्म नहीं है, लेकिन दूध से दही बन जाता है। इसका अर्थ क्या है कि दूध में भी ऐसे कुछ गुण तत्व है जो बदल सकते हैं। अगर उसमें मैं बदल करूं तो दूध से मैं दही बना सकता हूं। लेकिन क्या दूध जीवित है, तो दूध जीवित नहीं है। तो जैसे दूध से दही बनता है और दूध जीवित नहीं है, वैसे ही प्रकृति से बाकी सारे तत्व उत्पन्न होते हैं, 23 तत्व जो है वो उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्रकृति जो है वो जीवित नहीं है। तो उससे जो तत्व है वो उत्पन्न कैसे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही एक गुण छुपा है, जिसका अर्थ है कि उत्पत्ति करना। वो उसका एक इनहेरेंट गुण होने के वजह से उत्पत्ति होती है। वो खुद में जीवित है, इसीलिए उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसे नहीं। मैं और एक इसका एक उदाहरण देता हूँ। और एक उदाहरण ये है कि ऐसा कहा गया है कि हमारे जो पेशी हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक छोटा सा, अगर बहुत ही छोटी एक पेशी अगर हम पकड़े, जैसे कोई बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आज वैज्ञानिक जो बोलते हैं ना, तो उसमें भी जीव है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी बुद्धि नहीं है। उसके अंदर जो सारी चीजें हो रही है ना, जो छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे बदलाव एक पेशी के अंदर हो रहे हैं, वो इतने छोटे हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो बदलाव हो रहे हैं, उसको चलाने के पीछे कुछ ना कुछ तो बुद्धि होगी। तो ये जो इंटेलिजेंस है, ये जो महत है, तो वो महत इसमें कार्यरत तो है, लेकिन उसका मूल गुण क्या है, तो मूल गुण प्रकृति का मूल गुण परिवर्तन होने के वजह से उसके अंदर काफी सारी चीजें हो रही हैं। तो इसका अर्थ यह है कि सांख्य के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो पत्थर में और शरीर, जिसे हम जीवित तो कह रहे हैं, लेकिन शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, और पत्थर में शायद हजारों वर्ष में वो कुछ न कुछ अपने खुद में बदलाव अगर हो रहे हो, तो वो एक ही है। तो जीवित शरीर के बदलाव, या तो जीवित शरीर या जीवित मन या जीवित शरीर के सभी तत्व, और एक निर्जीव पत्थर में सांख्य के हिसाब से कोई भी अंतर नहीं है। अंतर एक ही है कि पुरुष का संबंध जब मन, शरीर या बाकी के जो तत्व हैं, मतलब प्रकृति और उसके आगे जो तत्व हैं,
उसके साथ में जब इसका संबंध आ जाता है, तभी हम उसको जीवित कह सकते हैं, क्योंकि पुरुष का ही गुण जीवित किसे हम कहते हैं, तो हम सिर्फ पुरुष को ही कहते हैं, प्रकृति को हम जीवित नहीं कहते। लेकिन वेदांत में ऐसे नहीं माना जाता। कौन सही है कौन गलत है इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वैदिक चिंतन या कोई भी साधना में आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप किसी भी तरीके की समझ लीजिए, आप पुरुष और प्रकृति को एक समझ लीजिए या पुरुष और प्रकृति को अलग अलग समझ लीजिए, दोनों को जीवित समझिए या दोनों को जीवित मत समझिए, आपको पुरुष को प्रकृति से अलग करना ये जरूरी ही पड़ जाता है। साधना में आगे अनुभव जब आपको होगा तब आपको ये ध्यान आएगा कि पुरुष ये प्रकृति से कहीं ना कहीं अलग है। अभी प्रकृति जीवित है नहीं है, इसका कोई महत्व फिर नहीं रह जाता। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि सांख्य में कहा ये गया है कि प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसके वजह से काफी सारी चीजें हैं जो उत्पन्न हो जाती हैं, वो गुण उत्पन्न हो जाती हैं, वो हम आगे धीरे धीरे इसको देखते चले जाएंगे। अब काफी सारे सवाल आए थे कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है। इसके भी सारे जवाब जो है वो सांख्य में दिए गए हैं, क्योंकि सांख्य में ऋषि को यही बताना है कि ये तत्व क्या है। ऋषि इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि उनका कहना है जब तक हम इन तत्वों को पहचान नहीं लेते तब तक पुरुष को ये जानकारी नहीं हो जा, ये याद नहीं आ जाता कि वो प्रकृति से परे है। अब कैसा है कि प्रकृति के जो सारे गुण हैं उसके बराबर विरुद्ध दिशा में जो गुण है वो पुरुष के गुण होते हैं। ठीक है, साम्य है, ऐसा नहीं है कि प्रकृति का पुरुष के साथ साम्य नहीं है गुणों में, लेकिन उसमें एक 180 डिग्री का डिफरेंस हमें बताया गया है इसमें। लेकिन पुरुष जो है वो अपने आप को उस तरीके से नहीं देखता, लेकिन जब वो प्रकृति के गुणों को, प्रकृति के तत्वों को जान लेता है, तब धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि वो प्रकृति से परे है। मतलब क्या है, इसका महत्व समझिए। इसका महत्व समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसका महत्व ये है कि आज मेरे मन में जो सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं, गुणों के बारे में तो वो गुणों से उत्पन्न हो रही है, इसको समझ लेंगे, लेकिन जो सारी चीजें अच्छी बुरी, जो सारी चीजें उत्पन्न हुई है, उसको समझ लेना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, तो मैं पुरुष हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ। तो मेरे अंदर ये सारी चीजें उत्पन्न नहीं हो सकती जो मन के अंदर उत्पन्न हो रही है। मतलब जो मन में जो व्यवहार चल रहे हैं ना, धीरे धीरे जब ये अनुभव हो जाता है तो हमें समझ में आएगा कि हमारे शरीर और मन की चीजें इतनी तुच्छ अवस्था में चल रही है कि हम इसको इतना बड़ा महत्व, बुद्धि को, हम हमारे बुद्धि को इतना महत्व दे चुके हैं कि मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा यहाँ पे। ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं मेरे गुरु के यहाँ पे सीख रहा था तो मुझे गुरु ने सबसे पहली बात अगर ये सिखाई होगी, यहाँ पे अगर आगे जाना है, अगर साधना में आगे बढ़ना है, तो मेरे गुरु ने मुझे ये बात बताई थी कि सबसे पहला ये काम करो कि बुद्धि को महत्व देना बंद कर दो, कि तुम बहुत होशियार हो ये समझना बंद कर लो, कि तुम्हें कुछ समझ में आ सकता है ये समझना बंद कर लो। उपनिषद के साथ में यही अगर वाक्यों को मैं जोड़ दूं तो हमने केन उपनिषद में पढ़ा था कि गुरु ने बोला है कि अगर तुम समझते हो कि तुम ब्रह्म को जानते हो तो तुम ब्रह्म को नहीं जानते। अगर तुम समझते हो कि तुम ब्रह्म को नहीं जानते तो तुम ब्रह्म को जानते हो। तो यही सबसे पहली बात जो बताई गई थी, जो सिखाई गई थी, वो ये है कि बुद्धि के जो लिमिटेशंस है, अगर वो बुद्धि की जो सिद्धियां हैं ना बहुत बढ़िया है, वो हम वो भी देखेंगे, बुद्धि की सिद्धियां भी देखेंगे हम उसमें, लेकिन साधक जो है वो यही पे फंस जाता है। अगर वो समझ लेता है कि बुद्धि के जो पावर है, बुद्धि की जो क्षमता है वही सब कुछ है, और बुद्धि की क्षमता से हम पुरुष को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं, हम अपने आप को, मतलब मैं कौन हूं, अगर मैं ये जान लूं, ऐसे अगर मैं समझ लूं, तो आप किसी तरीके से कंफ्यूजन में है। बिल्कुल आप इसको सबसे पहली बात इस चीज को समझ लीजिए। तो हम ये क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बुद्धि से हम ये सारे तत्वों को जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
जब हम इन तत्वों को बुद्धि से जान लेते हैं, तब पुरुष ये जान लेता है कि इसके बराबर जो विरुद्ध है वो मैं हूं। तो पहले जानना ये जरूरी है कि तत्व क्या है, तो व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, प्रकृति क्या है, पूरी तरह से ये जानना जरूरी है। जब मैं ये जान लेता हूं, तब मैं क्या हूं, मैं इसके परे कैसे हूं, मैं उसे जान लेता हूं। बहुत ही सहज उपाय बताया गया है। सहज उपाय क्या है? मूल कारण, हमारे अज्ञान का मूल कारण जो है वो है विस्मृति। ऐसा कहा गया है। विस्मृति मतलब मैं भूल गया हूं, मैं भूल गया हूं कि मैं कौन हूं। आई हैव फॉरगॉटन हु आई एम। मुझे लग रहा है कि मैं बुद्धि हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं प्रकृति हूँ। मेरे मन में इतनी सारी उथल पुथल चल रही है, मेरे मन में इतने सारे विचार, एक ही समय पर इतने सारे विचार आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं शब्द हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे सुनाई जो दे रहा है वो मैं हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? तो मैं वो मूल पुरुष हूँ। इसी को उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि इस तरीके से बताया गया है। इसी को शैव में शिवोहम इस तरीके से बताया गया है। इसका अर्थ क्या है? मैं कौन हूं? मैं प्रकृति नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। तो पुरुष जो है, सांख्य में जो पुरुष है वो उपनिषदों में ब्रह्म है, और शैव में जो शिव है वही सांख्य में पुरुष है। तो पुरुष क्या है? पुरुष वही है। या तो अगर आप वैष्णव है और आप विष्णु को मान रहे हैं, तो विष्णु तत्व कौन है? यही इसी पुरुष तत्व को आप ब्रह्मा समझ लीजिए, आप शिव समझ लीजिए, या विष्णु समझ लीजिए। और उपनिषदों में, क्योंकि हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो मैं कौन हूँ? तो अहम ब्रह्मास्मि, ये जो महावाक्य कहा गया है, जो ऋषि हर एक उपनिषद में यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म हूं, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें याद करना है। ये मैं भूल गया, इतनी आसान, इतनी सी चीज है। क्या चीज है? कि मैं भूल गया हूं। क्या भूल गया हूं? कि मैं ब्रह्म हूं। तो करना क्या है? मुझे सिर्फ याद करना है कि मैं ब्रह्म हूं। मुझे सिर्फ याद करना ही है कि मैं शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। इतना सहज उपाय बताया गया है, लेकिन आप उसे याद कैसे करेंगे? आप उसी चीज को याद कर सकते हैं जिस चीज को पहले आपने देखा हो, या जो चीज स्मरण में हो। लेकिन स्मरण, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, वो किसका गुण है? तो वो बुद्धि का गुण है। लेकिन पुरुष तो बुद्धि नहीं है। तो जो मुझे याद नहीं है उसको मैं वापस याद करूं, मतलब मैं उसको वापस, उसके लिए मैं रियलाइज कर लूं। इसके लिए, ये होने के लिए मुझे सर्वप्रथम मैंने क्या किया है? तो मैं ये 23 तत्व हूं, ऐसे मैंने समझ लिया है। तो मुझे पहला स्टेप क्या है? मुझे जानना है कि ये तत्व क्या है। दूसरा स्टेप क्या है? मुझे ये जानना है कि इसके विरुद्ध जो है वो मैं हूं। और जैसे जैसे धीरे धीरे मैं इसका चिंतन करने लग जाता हूं कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं अव्यक्त नहीं भी नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। कैसे? तो उसके जो विरुद्ध है, हमें याद आने लगता है कि मैं कौन हूं, कि मेरा कोई आदि अंत नहीं है, मैं शाश्वत हूँ। ये हमें याद आने लगता है। ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो गुरुजी, गुरुजी, हाँ सर। हाँ, तुषार बोल रहा हूँ। हाँ जी। सो जस्ट सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। तो आप बता रहे हैं कि एक बार हमने इन तत्वों को जाना, फिर उनको नेगेट करके हम डिफरेंट तत्वों को नेगेट करके, प्रकृति से पुरुष को नेगेट करके, प्रकृति को नेगेट करके हम पुरुष के आइडेंटिफिकेशन तक पहुंचे। क्या मतलब आपका यही कहने का भावांश है, आप जो बोल रहे हो उसमें? आपने नेति नेति सुना है? नेति 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 सुना है, सुना है नेति सुना है। हाँ, जी। नेगेशन 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 नेगेशन, एग्जैक्टली। तो उपनिषद का सार क्या है? नेगेशन नेगेशन। मतलब आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, मैं ये आई एम नहीं नॉट। हूँ, मैं ये नहीं हूँ। राइट राइट दैट राइट इज सर। नेति नेति।
यही यही इसका सार है जो मैं बताने, ये आपने सही सही कैच किया है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हर रोज आप आज से ये चिंतन करना शुरू कीजिए कि मैं क्या नहीं हूँ, मैं व्यक्त के जो गुण हूँ मैं वो नहीं हूँ, अव्यक्त के क्या गुण है मैं वो नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ, उसको मैं क्या हूँ उसको बाद में देख लीजिए। देखिए पहले ये समझना होगा कि मैं ये नहीं हूँ, फिर जैसे जैसे मैं क्या हूँ वो जब खुद ब खुद एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है ना, वो जब हमारे कॉन्शियस फील्ड में आना शुरू हो जाता है, तब हम समझ लेते हैं। देखिए हम शिव को नहीं समझ सकते, शिव का अर्थ है जो नहीं है वो। हम कल्पना ही कैसे कर लें जो नहीं है वो, उसकी कल्पना ही कैसे करें, क्योंकि कल्पना किसका गुण है, कल्पना गुण है बुद्धि का। इमेजिनेशन किसका गुण है, बुद्धि का। तो बुद्धि कल्पना कर सकती है, लेकिन कल्पना किसकी, जो मेरे स्मृति में है मैं उसी की कल्पना कर सकता हूँ, जो मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो शिव क्या है, शिव की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसे बुद्धि से देखा ही नहीं है, लेकिन वो मैं हूं, मैं खुद ही वो हूं। तो जब मैं इसे अपने आप से दूर कर लेता हूं, जो मैं नहीं हूं उसको मैं अपने आप से दूर कर लेता हूं, तो भी मैं शिव देख नहीं सकता। इसको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शिव देख नहीं सकता, मैं शिव हूं इसका मैं अनुभव ही कर सकता हूं मात्र, क्योंकि प्रकृति में जो शिव के गुण है, पुरुष के जो गुण है, वो जब व्यक्त होने शुरू हो जाते हैं वो तब तक व्यक्त नहीं होते जब तक मैं समझता हूं कि मैं प्रकृति हूं। जब मैं समझ लेता हूं कि मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, मतलब मैं शिव हूं, शिवोहम, तब शिव के जो गुण हैं, मतलब जो नहीं है उसके जो गुण हैं, ठीक है, वो जब व्यक्त होने शुरू हो जाते हैं, कहाँ पर, प्रकृति में, वो जब एक्सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं, एक्सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं मतलब क्या होता है कि वो एक्सप्रेस हो ही रहे हैं, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। आपने एक प्रमाण देखा, वो प्रमाण क्या था, ध्यान। अगर मेरा ध्यान किसी एक चीज के तरफ हो तो मैं दूसरी चीज को नहीं देख सकता। अगर मेरा ध्यान प्रकृति के और उसके गुण, मैं इतनी इतनी तरीके से, इतनी इंटेंसली मैं उसमें अटक गया हूँ, इसके जो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, ये जो सारे इतनी तरीके से हो रहे हैं, मैं इसमें पूरी तरीके से बह गया हूँ। मतलब कौन बह गया है, शिव तो बह नहीं गया है, बुद्धि बह गई है। लेकिन जब मैं बुद्धि को 180 डिग्री मुड़ा देता हूँ, जब मैं उसको मोड़ देता हूँ, तो क्या होता है कि जो शिव है, जो नहीं है, वो परे हो जाता है 25 गुण, बाकी के 23 गुणों से। और वो जब परे हो जाता है तो मैं, वो मेरे ही प्रकृति में, ठीक है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग बात तो कर लेते हैं लेकिन उसमें वो इंटेंसिटी नहीं होती, और कुछ लोग बात कर लेते हैं, वही बात कर लेते हैं लेकिन उसमें इंटेंसिटी होती है। तो वो जो इंटेंसिटी कहाँ से आती है, तो वो इंटेंसिटी पुरुष से आती है, वो इंटेंसिटी प्रकृति से नहीं आ रही है। वो इंटेंसिटी कहाँ से आ रही है, वो जो ऊर्जा है, वो जो ज्ञान है, उन शब्दों के साथ ज्ञान जोड़े आ रहा है। तो ज्ञान किसका है, तो वो ज्ञान उस पुरुष का है, समझ रहे हैं। तो वो जब, वो उसका जो मूल ज्ञान है जब प्रकृति में उतरना शुरू हो जाता है, तब मैं उनके चिन्ह से समझ लेता हूँ कि शिव जो है वो ये है, वो इस तरीके से आगे आना शुरू हो गया है। जब मेरा, मैं पुरुष हूँ, मैं कौन हूँ, मैं शिव हूँ, ये सिर्फ अनुभव मात्र से जब आपका भय मिट जाता है, जब आप थक चुके हो पूरी तरह से। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, बहुत बहुत सिंपल एग्जाम्पल, फिर हम क्वालिटीज पे आएंगे। एक 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 दिन विवेकानंद जब वो परिव्राजक अवस्था में थे, रामकृष्ण परमहंस नहीं रहे थे, वो अपना देह रूप छोड़ चुके थे और विश्व रूप में विलीन हो गए थे। तो जब विवेकानंद अपने देह रूप में परिव्राजक अवस्था में चल रहे थे, तो उन्होंने 3-4 दिन कुछ खाना नहीं खाया था। अन्न का एक निवाला, पानी की एक बूंद भी उनके मुंह में नहीं गई। और वो चल रहे थे और उनके शरीर में इतनी थकान उन्हें महसूस होनी शुरू हो गई कि एक पैर, एक कदम आगे चलना उनके लिए महज इम्पॉसिबल हो गया था, अशक्य हो गया था। और वो वहां पर रुक गए, वो बैठ गए वहां पे, किसी झाड़ ढूंढ के वहां पर बैठ गए और उन्हें लगा आज मैं मरने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं जिंदा नहीं रह सकता। ये उनकी तपश्चर्या है,
ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिल सकता था, ऐसा नहीं है कि बुद्धि क्षमता नहीं थी कि काम कर सके, लेकिन तपश्चर्या में खुद को उस तरीके तक, वहां तक लेके जाना, ये उनका पैशन था। तो वो अपने आप को 3-4 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था और उन्होंने सोच लिया अभी इसके ऊपर मैं जिंदा नहीं रह सकता, और पता नहीं जो है वो मैं अपने आप को सौंप देता हूँ मेरे गुरु के चरणों में, मैं अपने आप को सौंप देता हूँ, उन्होंने सोच लिया। दूसरे ही क्षण उनके मन में विचार आया। तो ये सारी चीजें तो मन में बुद्धि में ही हो रही है, लेकिन विचार क्या आया कि पहला विचार ये आया कि मैं प्रकृति नहीं हूं, ये विचार आया उनके मन में, मैं शरीर नहीं हूं। जो कमजोरी आई है वो शरीर में आई है, और जो सारी शक्ति है जिस उसका मूल स्रोत क्या है, उसका मूल स्रोत मैं जो हूँ वो है, मतलब शिव। मैं कौन हूं? तो मैं शिव हूँ। मैं कौन हूं? तो मैं पुरुष हूँ। तो अगर मूल शक्ति का मूल स्रोत वो है, अगर मूल सोर्स वो है, तो शरीर में कमजोरी कैसे आ सकती है? और 5 मिनट में, उसी कुछ ही क्षणों में, उनका संपूर्ण शरीर चैतन्य से भर चुका था। इसका अर्थ क्या है? शरीर में खाने का एक निवाला भी नहीं था, लेकिन जब वो भूल गए थे कि वो कौन है, उस वीकनेस के, उस कमजोरी के वजह से वो क्या हुआ वहां पे कि वो अपने ही शरीर के दास बन गए थे कुछ समय के लिए। लेकिन उन्हें याद आया कि शरीर मेरा दास है, मैं शरीर का दास नहीं हूं, और वो फिर से मुक्त हो गए। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति ये नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर आ गए हैं, मैं यहाँ पे बैठ लूं, मैं सिर्फ आंखें बंद कर लूं। अध्यात्म क्या है? मेरे गुरु ने हमेशा ये बताया था कि अध्यात्म मतलब खुद को बदलना, खुद को जानना, ये अध्यात्म है। तुम आंखें बंद कर लो और दुनिया में क्या चल रहा है उसको समझ लेना, ये अध्यात्म नहीं है। या और कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे बैठो और उससे डिसाइड करो, अपने ही मन से चीजों को चलाओ, या अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो, ये अध्यात्म नहीं है। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है अपने आप में बदलाव, आध्यात्मिक बदलाव लाना, अपने आप को जान लेना, ये अध्यात्म है। तो मैं उदाहरण ये दे रहा हूँ, तो मैं तो बहुत सामान्य साधक हूँ, लेकिन मैं आपको एक ऐसे महान साधक की बात कर रहा हूँ जो ब्रह्म जान चुके थे, विवेकानंद। तो वो भूल गए, और जब उनको ऐसे इस क्षण याद आया कि वो कौन है, वो शिव है, वो पुरुष है, वो प्रकृति नहीं है। सांख्य का महत्व समझिए। ये महत्व क्यों आया? क्योंकि उन्होंने वेदों का अध्ययन, उनके गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने उनको जो वेदों का अध्ययन बताया था, तो वो हमेशा से अध्ययन करते आ रहे थे, और वो उनके स्मृति पटल पे थे। और इस कठिन समय पर उनको ये चीज याद आ गई कि मैं भूल चुका हूँ कि मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं पुरुष हूं। और जैसे उन्हें ये याद आया कि मैं शिव हूं, मैं ये प्रकृति नहीं हूं, तो उसी क्षण उनके शरीर में चैतन्य जागृत हो गया, और वो वैसे उसी अवस्था में चलने शुरू हो गए। तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है ये सारी चीजों का। ये हम ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के, महान लोगों के ये अनुभव है कि वो क्या है, वो पुरुष है। तो वही पुरुष है क्या? वही पुरुष जो है वो मेरे अंदर में भी वही पुरुष है, आपके अंदर में भी वही आत्मा है। तो आप भी शिव हैं, गुरुजी आप भी शिव हैं, और मैं भी शिव हूँ, और हमारे बाजू में जो बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, वो भी शिव है। इसी को हमें जान लेना बहुत जरूरी है। तो इसको जानने के लिए मैं वापस फिर से यही आ रहा हूँ। तो उसको कैसे जानेंगे? तो उसको जानने के लिए हमें पहली बात जो है वो समझना जरूरी है कि जो प्रकृति है उसके गुण क्या है। तो प्रकृति को हम पूरी तरीके से जान ही लेंगे, लेकिन अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त प्रकृति में भी कुछ अंतर है, उसको हम जान लेते हैं। तो व्यक्त प्रकृति जो है वो फाइनाइट है, वो लिमिटेड है। मतलब क्या है? उसका आदि है और उसका अंत भी है। वो शुरू होता है क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो व्यक्त हो रहा है, तो वो वापस एक बार अव्यक्त में भी फिर से लौटकर जाने वाला है। तो मैं व्यक्त हूं, तो मैं अव्यक्त भी होने वाला हूं। तो मेरी शुरुआत है तो मेरा अंत भी होने वाला है। इस शरीर की शुरुआत हुई है और इस शरीर का अंत भी होने वाला है। दूसरा गुण क्या है? जो अव्यक्त है उसकी कोई भी सीमा नहीं है।
वो सभी दिशाओं में फैला हुआ है। आप उसे एक जगह पे, एक घर में, चार दीवारों में, एक शरीर के अंदर उसको बंद करके, पूरे अव्यक्त को बंद करके नहीं रख सकते। लेकिन अव्यक्त से जो व्यक्त हुआ है उसकी सीमा है। वो कहीं से शुरू होता है, किसी स्थान से शुरू होता है। अब मैं समय की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पहला गुण था वो समय से परे होना, और दूसरा गुण जो है वो स्थान से परे होना है। मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह तक सीमित हो जाता है। मतलब क्या है, मेरे अंदर जो सारा व्यक्त है, ठीक है, मतलब क्या व्यक्त है, बुद्धि व्यक्त है, अहंकार व्यक्त है, मन व्यक्त है, पंच ज्ञानेन्द्रिय व्यक्त है, पंच कर्मेंद्रिय व्यक्त है, तन्मात्रा व्यक्त है, पंच महाभूत व्यक्त है, और उसकी सीमा है। उसकी सीमा क्या है, तो ये जो मेरा शरीर मुझे दिखाई दे रहा है, अपने आप शरीर को देख लीजिए, अपने हाथ देख लीजिए, उंगलियां देख लीजिए, तो मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। तो ये जो व्यक्त है, इसकी सीमा मुझे महसूस क्यों हो रही है, क्योंकि व्यक्त का गुण ही सीमित होना है। इसीलिए सीमित होने का अनुभव मुझे आ रहा है। पुरुष प्रकृति के संबंध में आ चुका है, अहंकार उत्पन्न हो चुका है। अहंकार कह रहा है कि ये जो सारे मन, ज्ञानेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये मैं हूं, यही मैं हूं, इसके परे में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी वजह से मैं सीमित हूं। व्यक्त के वजह से पुरुष समझ ले रहा है कि मैं सीमित हूं, लेकिन पुरुष की कोई भी सीमा नहीं है। तीसरा गुण क्या है, व्यक्त जो है वो हमेशा कार्यरत रहता है, और उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आते ही रहता है। बदलाव संसार का नियम है, जो हम गीता में पढ़ते हैं, गीता में समझते हैं। उसका यही अर्थ है कि व्यक्त का मूल स्वभाव क्या है। व्यक्त का मूल स्वभाव यही है कि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहेगा। वो कभी भी शून्य अवस्था में नहीं आ सकता। लेकिन अव्यक्त का गुण है कि उसमें खुद में बदलाव आना, कि वो हमेशा एक स्थिर रूप में हमेशा रह सकता है। लेकिन उसका जो व्यक्त गुण है, उस व्यक्त गुण में ही ये जो हम आगे 13 गुणों की बात कर रहे हैं, 13 तत्वों की बात कर रहे हैं, उसी में बदलाव, और हमेशा उसी में अगर हम देखेंगे तो आगे पीछे बनना बिगड़ना, ये जो सारी चीजें हैं, जो बदलाव हमें दिखाई दे रहे हैं, जो मूवमेंट है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, या एक तत्व से दूसरे तत्व में बदलाव होना, दूसरे तत्व से फिर से पहले तत्व में विलीन हो जाना, ये हमेशा इसमें शुरू होने से अंत तक हमेशा इसमें ये सारी चीजें होती रहती है। लेकिन जब इसका भी अंत हो जाता है, जब व्यक्त का अंत हो जाता है, तब क्या रहता है, तो प्रकृति रहती ही है। मतलब व्यक्त प्रकृति का अंत हो भी गया तो अव्यक्त प्रकृति जो है वो हमेशा रहेगी। इसीलिए उसे इटर्नल, मतलब जिसकी कोई भी काल सीमा ना हो, ऐसा कहा गया है। व्यक्त जो है वो अलग अलग रूपों में आ सकता है, लेकिन अव्यक्त सामान्य है, उसके कोई भी रूप नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि मेरे जो गुण है, उदाहरण के तौर पर, वो आप में भी गुण है। मतलब मेरे जो अंदर तत्व है, वही तत्व पृथ्वी में है, वही तत्व एक पत्थर में है, वही पहाड़ में है, वही पानी में है। जो वो जल तत्व जो जो नदी बनकर बह रहा है, वही जल तत्व मेरे स्वादिष्ठान चक्र में आकर बैठा हुआ है। वही जल तत्व से मेरा 70% शरीर बना हुआ है। ये तो है, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका संपूर्ण सामान्य कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ सकता, ऐसी बात नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जल तत्व ये पृथ्वी तत्व से परे है, पृथ्वी तत्व ये अग्नि तत्व से परे है। ये जो अंतर है, इसके वजह से कहा गया है कि ये अलग अलग रूपों में व्यक्त हो सकता है, इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। लेकिन प्रकृति का कोई भी रूप नहीं है, ये रूपों से भी परे है। जब ये सारा व्यक्त का खेल खत्म हो जाएगा, जब आदि हो चुका है, लेकिन जब इसका अंत आ जाएगा, जब महाप्रलय जिसे हम कहते हैं, ये सब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो कोई भी रूप शेष नहीं रहने वाला है। पांचवा गुण क्या है, पांचवा गुण यह है कि जो कार्य है वो कारण में विलीन हो जाता है। इसका अर्थ क्या है, मन कहाँ से उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है
मन कहाँ से उत्पन्न होता है? तो वो उत्पन्न होता है सात्विक अहंकार से। जब वो सात्विक अहंकार से उत्पन्न हो रहा है तो उत्पन्न हो गया है, लेकिन वो वापस विलीन हो जाएगा उसी सात्विक अहंकार में। सात्विक अहंकार फिर से अहंकार में विलीन हो जाएगा, अहंकार बुद्धि में विलीन हो जाएगा, बुद्धि महत में, महत व्यक्त प्रकृति में, व्यक्त प्रकृति अव्यक्त में विलीन हो जाएगी। और उसके उसके पहले कोई कारण ही नहीं है, तो उसके ऊपर विलीन, उसके पहले जो कुछ नहीं होने की वजह से उसमें विलीन नहीं हो सकता। इसीलिए व्यक्त क्या है? व्यक्त विलीन हो जाता है, अव्यक्त का कोई भी कारण ना होने की वजह से वो विलीन नहीं हो सकता। अब व्यक्त जो है वो अलग अलग अंगों से बना हुआ है, जो हम तत्व कह रहे हैं उन्हीं तत्वों को अलग अलग अंग कहा गया है, लेकिन अव्यक्त के कोई भी अंग नहीं है। व्यक्त जो है वो कार्य और कारण इसके आधार पर जीवित है। मतलब अहंकार ना हो तो मन नहीं हो सकता, तामसिक अहंकार ना हो तो तन मात्र नहीं जीवित रह सकता, पंचभूत अगर तन मात्र ना हो तो पंच महाभूत नहीं रह सकते। तो वो एक दूसरे पर आधारित है, लेकिन अव्यक्त प्रकृति जो है वो किसी पे भी आधारित नहीं है। वो सांख्य के हिसाब से, सांख्य के कहने से वो पुरुष के आधार पर भी नहीं है, वो अपने उसका खुद का ही अपना एक अनंत आधार है, उसी पे वो खुद विराजमान है। और जैसे हमने पहले भी देखा, उसका मूल विज्ञान क्या है? तो उसका मूल मैकेनिज्म है कारण और कार्य, कॉज और इफेक्ट। लेकिन अव्यक्त में क्या है? सिर्फ और सिर्फ कारण है, कार्य आगे उत्पत्ति है, कार्य है, लेकिन वो खुद एक कारण है, लेकिन प्रकृति का, अव्यक्त प्रकृति का उसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। तो उससे उत्पत्ति होती है, लेकिन प्रकृति की उत्पत्ति, अव्यक्त प्रकृति की उत्पत्ति उससे नहीं होती। अब हम देखेंगे कि तीन चीजें देखेंगे, जो सेकेंड टेबल है उसमें तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले क्या है? जो डिफरेंस है, फर्क है, अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति में अंतर है, लेकिन साम्य भी है। व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति में काफी सारी चीजें एक जैसे भी है। तो क्या एक जैसे हैं? तो ऐसे 7 गुण हैं जो दोनों के एक जैसे हैं। कौन से? तीनों ही गुणों से बने हुए हैं। प्रकृति में भी 3 गुण आते हैं, सत्व, रज, तम। ये 3 गुण प्रकृति में भी आते हैं। दूसरा गुण क्या है? आप व्यक्त को और अव्यक्त को अलग रूप से नहीं देख सकते हैं, या व्यक्त में भी अगर मैं देखूंगा तो उदाहरण के तौर पर बुद्धि, मन, ये मुझे महसूस हो रहा है कि ये अलग है, लेकिन वो एक ही तत्व का सारा भाग है। तो उसमें सेपरेशन जो है वो मैं उसको देख नहीं पाता, मैं उसको समझ नहीं पाता, तो वो उसका गुण है। और व्यक्त और अव्यक्त में फर्क जो है वो हम समझ नहीं पाते, तो ये समझना पॉसिबल नहीं है। सांख्य में एक कहा गया है कि प्रकृति, दोनों व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति का कारण क्या है, वो अस्तित्व में क्यों है? क्योंकि उसका अनुभव किया जाना है। वो खुद में जीवित नहीं है, उसमें खुद का जीवन नहीं है, उसकी खुद की कोई चेतना नहीं है, तो उसका अस्तित्व क्यों है? ये तो बहुत सहज प्रश्न पड़ेगा हमें। तो फिर प्रकृति का अस्तित्व है क्यों? तो प्रकृति का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि उसका अनुभव किया जाना है। तो उसका अनुभव कौन करने वाला है? तो सांख्य में ही कहा गया है, तो उसका अनुभव करने वाला पुरुष है। प्रकृति की उत्पत्ति, जो प्रकृति की उत्पत्ति तो हुई नहीं है, वो खंड काल से है, लेकिन प्रकृति क्यों है और व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति क्यों है? क्योंकि उसका, पुरुष ने उसका अनुभव लेना ये जरूरी है। कुछ सवाल इसमें से पढ़ सकते हैं जो हम एक एक करके बिल्कुल देखेंगे इस स्लाइड के बाद में, लेकिन ये स्लाइड हम पहले पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति जो है वो सामान्य है। मतलब इसका अर्थ क्या है? मैंने अभी जो बताया कि नदी में भी वही जल तत्व है, जो मेरे अंदर स्वादिष्ठान चक्र में जो जल तत्व बैठा है वो भी वही है। जो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में है वही पृथ्वी तत्व मेरे मूलाधार चक्र में है। अगर मैं मंगल ग्रह पे जाऊंगा तो उसमें भी जो धातु है, जो मेटल है, वो क्या है? वो पृथ्वी तत्व ही है। तो ये सारी चीजें सामान्य अनुभव में आती है। मैं जो पृथ्वी तत्व देख रहा हूं और आप जो पृथ्वी तत्व देख रहे हैं, या तो तीसरी व्यक्ति जो पृथ्वी तत्व देख रहे हैं,
वो अलग अलग अनुभव नहीं होने वाला है। ये सभी के अनुभव में एक सामान्यता है कि मुझे जो आकाश दिखाई दे रहा है, मुझे जो बादल दिखाई दे रहे हैं, वो दूसरे इंसान को उसी तरीके से बादल दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ मुझे बादल एक दिशा में दिखाई दे और किसी और को बादल किसी और एक रूप में दिखाई दे और किसी को दूसरे रूप में दिखाई दे, ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति को सामान्य बताया गया। सामान्य मतलब ऐसे ही कुछ तो वाला सामान्य नहीं, सामान्य मतलब आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, ऐसा उसमें नहीं होता। पांचवा गुण यह है कि प्रकृति में अपनी खुद की जो इंटेलिजेंस है, जो महत्ता है, वो नहीं है, ऐसा कहा गया है। मतलब महत्व ये प्रकृति का गुण है, लेकिन प्रकृति जीवित ना होने के वजह से और पुरुष प्रकृति के संबंध में आने के वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति को अपनी बुद्धिमत्ता है। लेकिन जो सुपर इंटेलिजेंस हम जिसको कहते हैं, प्रकृति को अपने आप की कोई भी सुपर इंटेलिजेंस नहीं है। और छठवां गुण क्या है कि वो उत्पत्ति, दोनों व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति दोनों से ही उत्पत्ति होती है, और दोनों ही व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति दोनों ही जीवित नहीं है। अब देखते हैं व्यक्त अव्यक्त प्रकृति, जिसको हम अब सिर्फ प्रकृति कहेंगे। तो प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है, हम इसको देखेंगे। पुरुष जो है वो बराबर इसके परे है। पुरुष 3 गुणों से सत्व रज तमस से प्रभावित नहीं होता। पुरुष ये प्रकृति से परे है और उसके वो जो अलग है वो खुद को अलग समझ सकता है। वो किसी के भी अनुभव के लिए नहीं है, वो स्वयं के अनुभव के लिए भी नहीं है, वो प्रकृति के लिए भी अनुभव के लिए नहीं है। अब पुरुष जो है वो सांख्य ये कहता है कि जब वही पुरुष किसी एक शरीर के संबंध से आ जाता है, किसी एक शरीर के प्रकृति के रचना के संबंध में आ जाता है, तो वो विशिष्ट आत्मा कहलाता है। वो वही पुरुष है, लेकिन जब वो किसी एक विशिष्ट व्यक्त प्रकृति के संबंध में आता है तो वो एक विशिष्ट आत्मा कहलाता है। इसके वजह से क्या होता है कि मेरे जीवन के अनुभव और आपके जीवन के अनुभव ये अलग अलग है ना। मेरे जीवन के अनुभव और अगर आपके जीवन के अनुभव एक जैसे ही हो, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं गंगा का पानी उठा लूं और मैं 10 दिशा में रखूं, पृथ्वी के 10 दिशा में रखूं, तो वो गंगा का पानी उसी तरीके से होगा। इसका मतलब क्या है, वो जो व्यक्त प्रकृति का जल तत्व है, गंगा का पानी है, वो 10 दिशा में उसी रूप में दिखेगा, उसका अनुभव उसी तरीके से आएगा। लेकिन जो पुरुष है, अगर वो इस विशिष्ट आत्मा बनकर अगर इस प्रकृति के किसी एक विशिष्ट रचना के साथ उसका संबंध आया है, तो उसके अनुभव अलग होने वाले हैं। मेरा जीवन का अनुभव आपके जीवन के अनुभव से हमेशा अलग होगा, आपका अनुभव किसी और के अनुभव से हमेशा अलग होगा। अगर वो सामान्य होता तो सभी के अनुभव एक जैसे ही होते। तो इसको ये फर्क है प्रकृति और पुरुष में। अब हम मूल फर्क देखेंगे, जो अंतर है वो देखेंगे अव्यक्त प्रकृति और पुरुष में क्या है, क्योंकि अव्यक्त प्रकृति भी जो अंतर नहीं, हम इसका साम्य क्या है, पुरुष और इसमें क्या साम्य है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ये व्यक्त प्रकृति के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये सिर्फ अव्यक्त प्रकृति और पुरुष का ही साम्य देख रहे हैं, उसमें समानता क्या है यही सिर्फ देख रहे हैं। तो अव्यक्त प्रकृति का भी कोई कारण नहीं है, पुरुष का भी कोई कारण नहीं है। अव्यक्त प्रकृति भी अनंत है, पुरुष भी अनंत है। काल, मैं काल रूप में गणना कर रहा हूँ कि अनंत काल तक है, और पुरुष भी अनंत है, काल से अनंत है। अव्यक्त भी अनंत रूप से फैला हुआ है, पुरुष भी अनंत रूप से ही फैला हुआ है। दोनों ही किसी भी तरीके ही इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों ही किसी और तत्व के आधार लेने की दोनों को ही भी आवश्यकता नहीं है। नकुल जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल है। हाँ, उमाकांत जी आवाज आपका कट किया था अभी बीच में। कट हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुझे इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, ओके। अभी ठीक से सुनाई दे रही है? जी अभी बेटर है जी। जी, श्योर, ओके ओके। तो जो छठवां गुण है वो क्या है कि दोनों ही रूप में नहीं बटे हुए हैं, दोनों ही एक ही रूप में है। निर्गुण निराकार इसी रूप में है, वो सगुण साकार रूप में नहीं है। और कोई भी अव्यक्त प्रकृति का कोई भी राजा नहीं है, व्यक्त और पुरुष का भी उसको कंट्रोल करने वाला या कमांड करने वाला कोई भी अथॉरिटी उसके पीछे नहीं है। अब जब हम समझ लेते हैं कि अंतर क्या है प्रकृति और पुरुष में और कुछ साम्य भी है, उसके बाद में हमें समझना होगा कि प्रकृति पुरुष के 4 मूल गुण है। इसको भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहला है कि हमने देखा कि वो प्रकृति से परे है, वो अपने ही विश्व में खुद ही अपने ही अस्तित्व में वो रह सकता है, उसका खुद का अपना एक अस्तित्व है। दूसरा क्या है कि वो खुद में ही सन्यासी वृत्ति का है, वैरागी वृत्ति का है। सन्यासी कैसे होता है? उसे किसी भी चीज दुनिया में क्या हो रहा है, अपने बाजू में क्या, उसके खुद के शरीर और मन के साथ क्या हो रहा है, उसका भी कोई लेना देना नहीं होता कि क्या विचार आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, कौन से रोग आ रहे हैं आके जा रहे हैं, किसी भी चीज का उसे किसी भी तरीके का लेना देना नहीं होता। जैसे एक सन्यासी का भाव होता है, सन्यासी भाव तब आता है जब सन्यासी पुरुष में स्थित हो जाए। तीसरा गुण क्या है कि वो सिर्फ देख रहा है, वो सिर्फ समझ रहा है, वो एक विटनेस है, वो उसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता किसी भी कार्य में, मतलब प्रकृति के कार्य में कहीं पर भी वो इन्वॉल्व नहीं होता। और चौथा क्या है? सही को सही समझना, जो चीज जैसी है उसे वैसे ही समझ लेना, ये पुरुष और सिर्फ पुरुष का ही गुण है, ये प्रकृति का गुण नहीं है। इस वजह से जो सारी चीजें हम देख रहे हैं वो वैसी नहीं है ही नहीं। जब तक हम पुरुष में स्थिर नहीं हो जाते तब तक हमें जो सारी चीजें जैसी हैं वैसे समझ में कभी भी नहीं आ सकती। इसीलिए मेरा अनुमान हमेशा आपके अनुमान से अलग होगा, या 3 लोगों का अनुमान हमेशा अपने अपने स्वभाव पर आधारित होता है। ये अपने अपने स्वभाव पर, गुणों पर और अपने विचारों पर क्यों आधारित होता है? क्योंकि इसका जो परिणाम है वो 13 तत्वों में पाया जाता है, लेकिन पुरुष का अपने ये इसका खुद के कोई भी तत्व नहीं है, खुद के कोई भी विभाजन नहीं है। इसी वजह से जो सारी चीजें जैसी हैं उसे वैसी ही दिखाई देती हैं। इसी कारणवश जो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है उसे सत्य जो है वो सत्य रूप में ही हमेशा दिखाई देता है। हम जो बात करते हैं ना कि हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो सकती है, हमारी आंखें जो है वो धुंधली हो सकती है, लेकिन पुरुष की आंखें कभी धुंधली नहीं हो सकती। और जो व्यक्ति पुरुष में स्थिर हो गया हो, जो व्यक्ति समझ ले कि वो प्रकृति से परे है, उसकी आंखें कभी धुंधली नहीं हो सकती, उसको सत्य हमेशा सत्य रूप में ही दिखाई देगा। कितना भी जटिल हो लेकिन उसको सत्य हमेशा सत्य रूप में ही दिखाई देगा, क्योंकि जो परसेप्शन है वो उसका गुण है। हम आगे गुणों में जाने वाले हैं, थोड़ा सा परसेप्शन क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है वो देखेंगे, और फिर हम गुणों को डिटेल में देखेंगे और हर एक तत्वों को भी उसका डिटेल में देखेंगे। अगर आज हम ये सेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीजें रह जा रहे हैं, तो हम इंजस्टिस नहीं करेंगे। एक थर्ड पार्ट बना के उसको हम कंटिन्यू बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजों का अपना एक महत्व है, हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ तक किसी को कुछ सवाल पूछना है, कुछ समझना है, सवाल पूछना है, तो हम एक 2 मिनट का ब्रेक भी लेंगे और सवाल भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे।
नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अगर इस ब्रेक में किसी को सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। सर मुझे एक सवाल था। हेलो हेलो, मानन सर। हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ जी। कि प्रकृति जब भी पुरुष के साथ सान्निध्य में होती है, जैसे आपने कहा प्रकृति तो एवर चेंजिंग है, हमेशा परिवर्तन होते रहता है, लेकिन जब भी पुरुष के साथ होती है तो अलग तरीके से परिवर्तन होता है, और जब भी पुरुष से अलग है तब होती है। जैसे कहा कि पुरुष ही जीवित है, प्रकृति जीवित नहीं है, लेकिन जब भी दोनों साथ होते हैं तो उनका परिवर्तन अलग होता है प्रकृति का। और जब भी पुरुष अलग हो जाता है, जैसे कोई मृत व्यक्ति है, उसके प्रकृति में जो बदलाव आते हैं, या शरीर में अगर हम बोले सिंप्लिसिटी के लिए, तो वो अलग होते हैं। तो दोनों का परिणाम करने का मतलब अलग अलग हो जाते हैं क्या परिणाम उनके? पुरुष के साथ अलग से परिवर्तन होता है और विदाउट पुरुष अलग परिवर्तन होता है। तो प्रकृति के परिवर्तन का कारण ही पुरुष है। सांख्य कहता है कि प्रकृति के उत्पत्ति का, प्रकृति मतलब व्यक्त प्रकृति के उत्पत्ति का कारण ही पुरुष है। जब पुरुष को अनुभव लेने की इच्छा जागृत होती है, प्रकृति खुद का अनुभव या पुरुष का अनुभव लेने के लिए नहीं है, लेकिन प्रकृति का अस्तित्व ही क्यों है। देखिए, अव्यक्त प्रकृति जो है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसका ना आदि है ना अंत है, ठीक है। तो वो हमेशा सूक्ष्म रूप में वैसी ही रहने वाली है। वो हमेशा पुरुष के साथ में हमेशा उसका अस्तित्व रहने ही वाला है, लेकिन वो व्यक्त होना तब शुरू हो जाता है जब पुरुष को प्रकृति का अनुभव लेना। ऐसे सांख्य में कहा गया है कि प्रकृति, व्यक्त प्रकृति के अस्तित्व का एक ही कारण है क्योंकि पुरुष को अनुभव लेना है, ये इसका कारण है और कोई कारण नहीं है। हेलो। हेलो, हाँ, हेलो जी जी। या सर, तो इज इट कनेक्टेड टू कर्म बंधन या कर्माशय? ठीक है, अगर आप इसको मैं दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से लेता हूँ, ठीक है। अभी शिव तत्व जो मूल पुरुष है, क्या वो कर्म में बंधा हुआ है? तो वो कर्म में किसी भी कर्म में नहीं बंधा हुआ है, लेकिन उसे फिर भी अनुभव लेने की इच्छा है, तो अव्यक्त प्रकृति व्यक्त हो जाती है। तो उसका कोई कारण नहीं है, वो सिर्फ इच्छा है। पुरुष किसी भी कर्म में बंधा हुआ नहीं हो सकता। हमें भासित होता है कि पुरुष कर्म में बंधा है, तो कर्म में क्या बंधा है? तो कर्म में सूक्ष्म शरीर बंधा है। जो लिंग हम कहते हैं, जो आज मेरा कर्म है, उसकी जो ऊर्जा है, उसके जो संस्कार है, वो मैं कहीं ना कहीं लेकर जा रहा हूँ। जो आत्मा है, जो पुरुष का ही है, पुरुष का ही अंश है, मूल पुरुष का। जब जब मैं मर जाऊंगा, जब ये शरीर नहीं जीवित रहेगा, तो वो आत्मा तो चली जाएगी। तो आत्मा क्या है? आत्मा मूल पुरुष ही है, तो उसका अंतर तो ऐसे। Makanji, we lost your voice. Yeah, last 30 seconds we lost your voice, I guess. ठीक है, अनस्टेबल दिखा रहा है मुझे। हेलो, हाँ अभी बेटर है, बेटर है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, ओके। तो जब कोई मृत हो जाता है तो उसके बाद पुरुष और प्रकृति में अंत तो आ ही गया है। तो जो स्पेसिफिक आत्मा है, वो उसका मिलन फिर से पुरुष के साथ, मिलन तो हुआ नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, तो वो पुरुष ही है। अब जो पुनर्जन्म हो रहा है, अब बात आ रही है पुनर्जन्म की, सही है। तो अगर पुरुष का विभाजन हो गया है तो वापस जन्म लेने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो जो अंश मात्र से जो पुरुष प्रकृति के संबंध में आया था, तो एक तत्व होता, एक अस्तित्व है जिसे हम लिंग कहते हैं। तो सारे जो तत्व है उसके सूक्ष्म रूप में वो लिंग रूप में रहता है, और वो जो लिंग है, संपूर्ण बाकी सारे तत्व विलीन हो जाते हैं। बाकी सारे तत्व जो है वो विलीन हो जाते हैं, लेकिन लिंग जो है वो हमेशा आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और वो उसके जो संस्कार है
वो सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उसके संस्कार निकल जाते हैं। तो वो जो लिंग है जो पुरुष के संबंध में हमेशा रहेगा, वो लिंग जो है वही कारण है जन्म और मृत्यु का। मृत्यु होने के बाद फिर से जन्म लेना क्यों होता है? क्योंकि वो जो सूक्ष्म रूप में लिंग पुरुष के साथ जो संबंध में हमेशा ही रहता है, तो वही कारण बन जाता है उसी पुरुष का वापस एक बार जन्म लेने में। लेकिन जब पुरुष और प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, तो लिंग में जो संस्कार है, सांख्य में कहा गया है कि लिंग में जो संस्कार है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और जब वो संस्कार नष्ट हो जाते हैं तो कोई भी कारण शेष नहीं रहता पुरुष के पास फिर से एक बार जन्म लेने का। इसीलिए जो महान व्यक्ति है वो मृत होने के बाद भी अपने इच्छा से जन्म ले लेती है और वो कोई भी नया कर्म पैदा नहीं करती। समझ गए आप ये बात? थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो एक साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें तत्व को भी देखना है, हमें लिंग को भी। अभी ये नया लिंग क्या आ गया, अभी पुरुष है, प्रकृति है, व्यक्त प्रकृति है, लेकिन ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ के समझना बहुत जरूरी है। इसी एंड में एक सेशन के एंड में एक स्लाइड है वैदिक लाइफस्टाइल का। तो हम वैदिक लाइफस्टाइल पे कुछ कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं। ये तो चिंतन का भाग हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में कैसे इसे लेके आ सकते हैं, इसके कुछ कोर्सेज डेवलप होते हैं। तो उसको होलिस्टिक व्यू में देखना, ये हम उस कोर्स का पार्ट बनाने वाले हैं। उसके अलावा कुछ अगर सवाल है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। हम एक 2 मिनट में सेशन की फिर से शुरुआत कर देंगे। उमाकांत जी, नमस्ते। जी। ये 3 गुना पुरुष में होते ही नहीं है, आप बोल रहे हो? सिर्फ बिल्कुल प्रकृति के भाग है? जी। अच्छा, और तत्व पुरुष में होते हैं? कंफ्यूज हो गई मैं। नहीं, तत्व भी पुरुष में नहीं होते, क्योंकि तत्व प्रकृति का भाग है। देखिए, इसको सिंपल करेंगे हम। पुरुष किसी भी तत्व को उत्पन्न नहीं कर सकता, ना वो मन को उत्पन्न कर सकता है, ना वो अहंकार को उत्पन्न कर सकता है, ना महत को उत्पन्न कर सकता है, ना वो पंचमहाभूत को उत्पन्न कर सकता है। तो उसके अंदर भी तत्व नहीं है। ठीक है, तो सारे गुण और तत्व प्रकृति ही उत्पन्न करती है पुरुष में? गुण उत्पन्न नहीं करती, प्रकृति तत्व उत्पन्न करती है। गुण क्या है? तो गुण वो फोर्स है जिससे सारे तत्व उत्पन्न होते हैं। ठीक। हेलो उमाकांत जी, दिस इज राजेश पेडनेकर। हाँ जी। कि नहीं, अगर आप अभी मैंने सुना क्वेश्चन आंसर में कि पुरुष प्रकृति या तत्व या गुण को उत्पन्न नहीं कर सकता, बट आप ये भी बोले कि पुरुष अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, यानी जो आत्मा है वो ब्रह्म है या शिव है, और ये सारी प्रकृति की उत्पत्ति भी ब्रह्म या शिव ने की हुई है, जो भी परम ब्रह्म या परम शिव। So by that logic, even the Purush should be able to create Prakriti or some part of Prakriti if I am Brahma. ठीक है, ओके। तो यही सवाल था जो बादरायण शंकराचार्य जी
और उनके जो अनुयायी है या उनके जो स्कूल ऑफ थॉट के जो सहमत रखते हैं, तो उन्होंने यही सवाल किया कि अगर प्रकृति पुरुष से अलग है तो पुरुष में क्या प्रकृति को उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं है? तो वेदांत में इसको मान्यता प्राप्त नहीं होती। वेदांत में प्रकृति और पुरुष में कोई भी अंतर नहीं है, और वेदांत में कहा जाता है कि मूल स्रोत जो है प्रकृति के तत्वों का, वहां पे अगर हम 36 तत्व भी देखेंगे या 25 तत्व भी देखेंगे तो उसका मूल सोर्स क्या है, तो वो पुरुष ही है। ऐसा वेदांत में माना जाता है। लेकिन सांख्य में कहा जाता है कि ये दो अलग अलग होते हैं, प्रकृति के तत्व अलग है और पुरुष में कोई तत्व नहीं है, ये सांख्य में कहा जाता है। अब मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था कि सच्चाई क्या है, अनुभव क्या है। तो जब अनुभव आने लग जाता है तो अनुभव फेजेस में आता है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब हम इवोल्यूशन देखेंगे तो शुरुआत सांख्य से हुई थी, वेदांत तो बाद में आया था। तो हमारा जो इंटरनल साधना में जो जब ग्रोथ होती जाती है तो हम सबसे पहले देखिए, आप पहले इसको अनुभव नहीं कर सकते कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। पहले हमें समझना होगा कि मैं मतलब ऐसे क्या क्या है जो मैं नहीं हूँ, उसको समझना है ना। तो फेजेस में हो रहा है ये डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वो कैसे हो रही है, वो फेजेस में हो रही है। उसी तरीके से जब मैं साधना में भी स्थिर हो रहा हूँ, जब मैं पुरुष में भी स्थिर हो रहा हूँ, तो उस साधना में भी फेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पुरुष में स्थिर हो गया हूँ तो इसका मतलब मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, नहीं। साधक के उसमें भी फेजेस होते हैं। तो साधक जब पुरुष में स्थिर हो जाता है तो उसकी फेज पहली ये है कि वो समझ लेता है कि मैं प्रकृति के परे हूँ। उसको ये समझना जरूरी है, नहीं तो वो वापस प्रकृति से जुड़ जाएगा। वो ना होने के वजह से पुरुष को ये हमेशा समझना जरूरी है कि मैं प्रकृति से परे हूँ। और जैसे जैसे ये अवेयरनेस स्थिर हो जाता है, पुरुष को ज्यादा अपने आप का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, तो वो इस विचार पर डिपेंडेंट नहीं रहता, आधारित नहीं रहता कि मैं प्रकृति के साथ हूँ कि प्रकृति के परे हूँ। अगर वो संपर्क में भी आता है तो भी उससे समझ में आता है कि मैं ही मास्टर हूँ, मैं ही इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये अलग अलग साधक के फेजेस हैं। ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। उमाकांत जी तुषार जी। तो मटेरियल कॉज और जो नॉलेज कॉज जो है, आप बता रहे हैं कि सांख्या ने उसको अलग से दोनों को डिफाइन किया है और वेदांता ने मटेरियल कॉज और नॉलेज कॉज दोनों एक ही साथ, एक ही उत्पत्ति है और वो एक ही है दोनों, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब ये समझना है कि आप मटेरियल स्थूल को बोल रहे हैं कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों को आप मटेरियल बोल रहे हैं। तो अगर आप सांख्य की बात करेंगे तो स्थूल जो है वो मटेरियल है और सूक्ष्म जो है उसको मटेरियल नहीं कहा जाता। लेकिन व्यक्त और अव्यक्त, या तो सूक्ष्म और स्थूल, ये दोनों भी प्रकृति का ही भाग है। तो मटेरियल कॉज और नॉन मटेरियल, ये व्यक्त और अव्यक्त में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन व्यक्त में भी मटेरियल नॉन मटेरियल डिफरेंस है। जो स्थूल है वो मटेरियल है ना, और जो स्थूल नहीं है, वो जो सूक्ष्म है, वो नॉन मटेरियल है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। अगर आप दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से बात करेंगे तो मटेरियल क्या है? मटेरियल वो है जिसमें बदलाव आते रहता है, तो वो व्यक्त हो गया। तो सारा व्यक्त मटेरियल ही है और सारा अव्यक्त जो है वो नॉन मटेरियल है। आप इस तरीके से भी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। और पुरुष जो है उसमें कोई भी मटेरियल एलिमेंट हो ही नहीं सकता। So do you mean that it is interchangeable? मतलब मटेरियल इन नॉन मटेरियल में चेंज हो सकता है और both can be changed into knowledge and knowledge can be changed into material. Is it so? No, see, understand, knowledge is a different thing, ठीक है? Knowledge is a guiding principle. Change is something that is happening within a material or a principle. Change is happening within a principle by the guiding principle. मैं एक example दे रहा हूँ. I'll give you a very simple example. If I throw a stone from 13th floor, it will go and sit down on the ground.
it will fall on the ground. Okay, so what is the action that is happening? The action is I am throwing, number one. Number two, the stone is falling on the ground. Now that is the change. The transformation is the stone was on the 13th floor, now it is on the ground floor. That is the transformation. What is the material involved? Material is earth and the stone. But what is the guiding principle? The guiding principle is gravity. Gravity is the law. So knowledge is the knowledge of the laws. Okay? And how they function for the transformation of the material. That is knowledge. Now, interchanging of material. So yes, there is always a continuous dynamic flux, transmutation of one material back to its original material, and from that material to the to its product material. आप समझ रहे हो, यही कार्य और कारण के बारे में बात हो रही थी. तो ये जो ट्रांसम्यूटेशन है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा और किसी डायरेक्शन में नहीं होगा. तो direction for that transformation is set. That is how it happens. Is it okay? Any Thank you. confusion? Thank you. नहीं, understood. Understood. Okay. Yeah. ठीक. तो I have a simple question. We have already touched 1 o'clock. कुछ लोगों ने 11 बजे से ये सेशन ज्वाइन करना शुरू किया था. हम अभी भी गुणों के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन गुणों को डिटेल में समझना प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन से बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं गुण नहीं समझता तब तक मैं नहीं समझ पाऊंगा, तब तक मैं अपने मन को नहीं समझ पाऊंगा, तब तक मैं अपने बुद्धि को नहीं समझ पाऊंगा. सत्व रज तम अहंकार क्या है, तो गुण दोष ये सारी जो चीजें हैं उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है. शुड वी कंटिन्यू और शुड वी टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन? इफ यू थिंक आई एम रेडी टू कंटिन्यू, आई हैव नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर आपको लेट अस कंटिन्यू नहीं, ये क्या आप चैट में प्लीज डालेंगे, सो लेट अस टेक सम कंसेंसस, क्योंकि कुछ लोग होंगे शायद जो जिनको कुछ और कमिटमेंट्स भी होंगे 1 बजे के बाद में, so I don't want to disturb those commitments. Next session. Okay, next session. तुषार जी भी बोल रहे हैं next session. Okay. पूनम जी बोल रहे हैं let us, ठीक है, let us do चिंतन on today. अनिकेत जी बोल रहे हैं कंटिन्यू. अच्छा, ये तो मिक्स हो गया है. ठीक है, चलो एक काम, let's do one thing. एक काम करते हैं, आज थोड़ा समय ले लेते हैं. जल्दबाजी में हम इसका चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं. शायद अगर समय का अभाव है, मतलब मैं दिनों का, संडेज का अभाव बोल रहा हूँ, अगर संडेज का अभाव है तो 1-2 उपनिषद अगर हम कम भी पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सांख्य को अच्छी तरीके से समझना बहुत ही जरूरी है. तो क्योंकि सांख्य जब समझ लेंगे तो उसका मूल आधार उपनिषद ही है, लेकिन उपनिषद को अगर हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे तो उसका अर्थ नहीं बनेगा. मैं एक एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ उसको, कि मैं अगर 5 तत्वों को 5 तन मात्रा से अलग करके समझने की कोशिश करूंगा तो मुझे वो समझ में नहीं आने वाले. मुझे तन मात्रा समझने होंगी, या तो मैं मेरे इंद्रियों के विषय को छोड़ दूंगा अगर मैं, तो इंद्रियों को कोई महत्व नहीं रहता. उसी तरीके से इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो सांख्य है. तो पहले हम सांख्य अच्छी तरीके से समझ लेंगे, फिर उपनिषद की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं. तो आज का सेशन हम यहाँ पे ही रोकते हैं, ताकि ये अच्छी तरीके से हम आगे जाके इसका